So today we are going to perform an experiment on multiplexer. Now what is a multiplexer? It has multiple input and then it has a select lines. Finally you have single output. So you can imagine this to be as a programmable switch where your output can connect to any of the possible inputs. Now the IC we are using is specifically having 8 inputs, I0 to I7, and 3 select lines, S0, S1, S2. So what will happen if all 3 select lines, S0, S1 and S2 are set to 0, 0, 0? Whatever input you have given at I0 will be transferred to output at Z. So if I select randomly 0, 1, 1, now this actually belongs to, so this is 0, this will belong to 3, that is 4th input. That's why you have to choose I3 here, which will be transferred to the output Z. अगर आप यहाँ पे 0 देते हो और सिलेक्ट लाइन 0, 1, 1 पे है और यहाँ पे 1 देते हो तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा, क्योंकि सिलेक्ट लाइन डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा. ठीक है. So this is the role of a multiplexer. Multiple inputs are connected to a single wire, and which of the input to be selected is controlled by select lines. ठीक है. तो आज के एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे अल्टरनेटिवली 0, 1, 0, 1 ऐसे देते जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे स्टार्ट विथ 0, 0, 0. आउटपुट क्या होना चाहिए, सिंस दिस इज 0 and we have selected this input 0, 0, 0, output should be 0. Now keeping the same input, if you turn this to be 1, output should change to 1. That means now this input is connected to the output, and whatever is the status of these pins, you change it, you will see there is no effect on the output. ठीक है. तो पूरे वेरिफिकेशन में आपको टोटल S0, S1, S2 के डिफरेंट स्टेट इम्प्लीमेंट करने हैं. तो टोटल 8 स्टेट होंगे. तो फोटो कितने आएंगे, 8 इंटू ये कितने आएंगे, 8, लेकिन वहाँ पे 2 स्टेटस है, 0 और 1. ठीक है. तो एटलीस्ट 3 इंटू 8 इंटू 2 इतने फोटो निकालने इस एक्सपेरिमेंट. ठीक है. ये एक्सपेरिमेंट पहले करना है बिफोर यू स्टार्ट विद 4 बिट फुल एडर, जो लास्ट टाइम का पेंडिंग एक्सपेरिमेंट है. एंड ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट द बूलियन एक्सप्रेशन वेरिफिकेशन LHS और RHS फॉर ऑल 19 एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द बोर्ड. हम 8 input multiplexer. 8 input, that means we'll have 8 input lines. Now if you see the relation, select lines is 2n. तो अगर 3 सिलेक्ट लाइन है तो 2:3 हो जाएगा. तो इट कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द 8 इनपुट. अगर आपका मल्टीप्लेक्सर 16 इनपुट का होगा तो आपके पास सिलेक्ट लाइन हो जाएगी 4. ठीक है. अगर आपका इनपुट लेट से सिलेक्ट लाइन 6 है तो आप कितने इनपुट में से सिलेक्ट कर पाओगे, 2:6, which is 64. Yes. Now obviously 8 inputs, 3 select lines, so total 11 pins are already gone from the 16 pin IC. VCC और ग्राउंड रहता है. इसमें वापस नॉर्मल है, एडर जैसा आर्टिंग लोकेशन पे नहीं है. तो ये वाला कॉर्नर जो है नंबर 16 इज योर VCC, एंड पिन नंबर 8 दैट इज द अदर डायगोनल एंड ऑफ द कॉर्नर इज ग्राउंड. हमेशा ऐसे नॉच देखो, IC फेसिंग टॉप डायरेक्शन, प्लेस इट लाइक दिस एंड देन लॉक इट. नेक्स्ट कनेक्शन यू नीड टू डू एज यू ऑलवेज डू, इस तरह के वायर अवॉइड करो. ठीक है. कलर कोडिंग पॉसिबली रेड VCC को यूज़ करो और ग्राउंड के लिए ब्लैक यूज़ करो. तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ VCC टू पिन नंबर 16. जैसा हम जानते हैं हमेशा ऐसे ही ये पूरा 20 तक जाता नहीं है, 8 पे ख़त्म हो रहा है तो 9 यहाँ से है, तो 9 becomes 13, इसीलिए 20 पिन इज 16. Next you need to connect ground. So ground is connected to pin number 8. ठीक है.
ये 16 पिन का IC इसलिए दूसरा डायगोनल है 8 पे 7 पे मत कनेक्ट कर दो. Then you have to connect 3 select lines to 1, 2, 3 pin, and then you need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more you need 8. Okay. What you can do is these pins typically have an option of doing multiple connections from one. So if you connect this way, now with the same input, you can send low or high on this side. Ideally only 4 are required, 3 for select and 1 active input. Okay, whichever you have selected. So that's why you don't need all pins. But if worst case you don't have extra button left for it, what you can do is, let's say this is the pin. I want to give a ground, I can give it from here. If I want to give VCC, I can give it from here. तो जब ये ख़त्म हो जाए तो आप एक्स्ट्रा इनपुट इस तरह से जनरेट कर सकते यूज दिस. पर अभी आपके पास स्विच नहीं होगा तो आपको मैन्युअली 0 1 करना होगा. और मैं चाहता हूँ आप ये भी ऑब्जर्व करो कि जब हवा में रहता है तो ये ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेते हैं. ये चेक करना कि 1 होता है कि ठीक है. पिन हवा में है लेकिन जैसे आप उसको टच करोगे ग्राउंड पे. ओके. तो आज का एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको यहाँ पे एक अनेबल करके पिन है जो आईसी को ऑन या ऑफ करते चालू करते हैं. तो अनेबल, अगर अनेबल बार है तो ग्राउंड करना है, अगर अनेबल पिन है तो वीसीसी को लगाना है. ठीक है. बहुत सारे आईसीज में आगे से अनेबल पिन होगा. अनेबल पिन मतलब सीधा टेम्पररीली विदाउट डिस्कनेक्टिंग वीसीसी एंड ग्राउंड यू कैन टर्न ऑन और टर्न ऑन द आईसी लाइक द पावर बटन. ठीक है. So now you start performing this experiment and you need to collect 3 into 8 into 2 photographs. So a job of a decoder is to give the output at specific output line based on the status of your select lines. So you have 3 select lines. जैसे मक्स में 3 सिलेक्ट लाइन थे, इसमें भी 3 सिलेक्ट लाइन होते हैं. इट स्टार्ट्स विद 0 0 0 एंड एंड्स विद 1 1 1. सो दिस टाइम यू हैव 8 आउटपुट्स इंस्टेड ऑफ 1 आउटपुट एंड ओनली 1 इनपुट इंस्टेड ऑफ 8 इनपुट्स. तो पूरा उल्टा है इसमें. सो इसमें कनेक्शन वैसे ही ये प्रोग्रामेबल स्विचेस है जो ऑन ऑफ होते हैं based on the select lines. So now if I apply 0 and I give 0 0 0, the first input I0 will be 0. ठीक है. और अगर I0 बार है तो this will be 1. This bar indicates inversion. Now if I convert this to 1, so decoder और demux में एक ही difference है. If the input is permanently connected to VCC, it becomes a decoder. Now that means, now based on the select line the output will go high, and if it is inverted output will go to low. What will happen to other pins? Since they are not connected, their status are not deterministic. That means if I give 0 0 1, this one will get transferred to your I1 line. लेकिन पहले ऐसी में कैसा था, सिर्फ एक अनेबल का पिन था ई, और वो भी ई बार था. मतलब इसको जब तुम ग्राउंड कर दोगे तभी ये आईसी चालू हो जाएगी. ओके. सो इस वाले में आपको E1 E2 E3 ऐसे 3 अनेबल पिन. ठीक है. और उसमें से E1 और E2 याद रखना, E1 और E2 ये बार अनेबल है. बार अनेबल मतलब इन दोनों पिन्स को ग्राउंड करोगे तब आईसी शुरू होगी. और जो E3 पिन है वो VCC enabled है. तो you have to connect a VCC to it. उसके बाद ये सारा ऑपरेशन कंडक्ट होगा. If you go by the IC layout, again pin number 8 is VCC. 16 is VCC, 8 is ground. Same as your mux. IC number is different. This time it is 74138. ठीक है. इसके स्टेटस में आउटपुट के कितने फोटो आएंगे? यू स्टार्ट विथ 0 0 0 गो टिल 1 1 1. सो टोटल
8 from this set and 2 binary levels. क्लियर? एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा और ये 8. तो इसमें आउटपुट के फोटो कम आएंगे क्योंकि इनपुट लाइन टोटल 4 ही है, तो सिर्फ 16 फोटो काफी है इसमें. क्लियर? और आपके किट पे ये सारे जो है वो 8 एलईडी आउटपुट्स पे जाएंगे. तो इनपुट कितने होंगे? 1 2 3 4. इसके 16 सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन 0 0 0 से लेके 1 1 1 और आउटपुट 8 है. तो फोटो थोड़ा दूर से लेना ताकि 8 एलईडी विजिबल रहे. ठीक है? So this is the second part. Now till this point we have finished up to experiment 4. The first experiment everybody has already completed. And or not तीनों का बेसिक वेरिफिकेशन करना है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 शायद सब लोगों ने कर लिया है, NAND NOR XOR. पार्ट 2 बाकी है बहुत सारे बच्चों का, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल बूलियन लॉज. थर्ड एक्सपेरिमेंट का फुल एडर फुल सबट्रैक्टर शायद नहीं हुआ है. फुल सबट्रैक्टर, फुल एडर और हाफ एडर तो पक्का हो गया है, हाफ सबट्रैक्टर भी हो गया है. तो ये फुल सबट्रैक्टर और 4 बिट फुल एडर ये पेंडिंग है. आज के केस में अभी वेरिफिकेशन ऑफ मक्स आप लोग कर रहे हो, इसके बहुत सारे फोटोज है, 8x3x2 और डिकोडर. तो ये भी आज कंप्लीट नहीं होगा, ये पेंडिंग रहेगा. ठीक है? सो ये स्टार्ट परफॉर्मिंग. आज का सबमिशन है मक्स का. सेकेंड स्टॉप.